My background is yoga, and I am a MSc in Applied Yogic Science from World First Yoga University, Bihar Yoga Bharati Munger. So I was working on the prana and the effect of the prana on the body. And in yoga, there is a concept of movement of prana, means you can, uh, there is no translation of prana, but in a gross, the term energy is used for prana. And same thing, the key in the acupuncture used for the prana. So combinedly, for all, we use energy. So in yoga, energy movement is there, prana is there. You have blood flow, you have neural flow, you have everything in the body. But when prana goes out, nothing will work. So prana is the most important ingredient for the life. And without prana, it is lifeless. But science never believed that this prana flow in the body in a certain route. But anciently, our yogic wisdom, 5,000 old wisdom, they explain prana flow in a certain network. And that network in yoga known as nadi. But again, this nari, concept of nari, is the hypothetical construct. It's not exist physically. And it was said there are 72 or 75,000 nari in our body in that prana flow. In same way, in acupuncture, energy flow in certain network, and that network in a channel, form of channel, and that channel is known as meridian. But again, it is also a hypothetical construct. It's not exist physically. So some scientific basis needed for that. And in 1960s, the people who are working on the medicine, they start discarding the alternative system of medicine which works on the energy. We will discuss these things, energy system of treatment, but they start discarding. And then what happened? The people who were practicing alternative system of medicine based on prana or energy, they just try to cover their face and go behind, because they are tremendous discard and refusal from the medical science practitioner. And all the system, 60s to 2000 or before 2000, it was on the peak. But again, in the world, some people are working same field, working on this, that why they are discarding other things except medicine. There was some reason, vested reason behind that. And that reason was the drug promotion or drug lobby pressure, or something you can say hijacked by the drug, and everything they want to discard and destroy. In that
other system of medicine except allopathy. This leads to some doctors, some scientists in confusion, or they have some thought back of the mind. Why drug is not able to cure any kind of chronic disease? Why people need to take medicine for the whole life? Why? Why body is not responding? Question mark. This means there is something in the body which is not addressed by this system of medicine. And this system of medicine based on the petroleum. This is the petroleum drug. 150 years back, there was no petroleum-based medicine. The medicine was there, but that was the herb extract, and that was very effective and safe. So, the researcher, they found out in our body something which is left behind, and that thing is a huge network. In that, actually, energy flow, and that network protect body, control body activity inside whatever happening, facilitate inside communication and movement and everything. So we'll discuss very comprehensively that. तो यहाँ पर हम विराम देते हैं और हिंदी में इसको फिर से मैं दोहराता हूँ. मेरा बैकग्राउंड योगा का है. मैंने वर्ल्ड के फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी बिहार योग भारती मुंगेर से अप्लाइड योगिक साइंस में पोस्ट ग्रेजुएशन किया. उस समय से योगा में एक कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी प्राणा बॉडी में फ्लो करती है एक नेटवर्क में, और उस नेटवर्क का नाम है नारी. बट वो हाइपोथेटिकल है, मतलब वो काल्पनिक है. वो अगर आप ऑपरेशन करें, मेडिकल पीपुल कहते किधर है दिखाओ, तो आंसर नहीं होता था. इसी तरह एक्यूपंक्चर में एनर्जी फ्लो करता है एक सर्टेन नेटवर्क में, चैनल में, उसको कहते हैं मेरिडियन. और मेरिडियन भी अगेन हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, उसको अगर फिजिकली खोजना चाहेंगे तो नहीं मिलेगा. तो 60s के दौरान जो ये ड्रग लॉबी थी, या जो मेडिसिन और ट्रीटमेंट मेथड जो मेडिसिन के ऊपर बेस्ड था, कौन सा एलोपैथिक मेडिसिन, वो डिस्कार्ड करना शुरू किए. मतलब जितने भी सिस्टम ऑफ मेडिसिन थे उनको इस तरह से डिस्कार्ड, आप समझ लीजिए लिटरली गाली देना शुरू किए. तो जो भी प्रैक्टिशनर थे ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, मुंह छुपाते, पीछे चले गए, छुप गए. बहुत सारे क्रिएट किए गए सिचुएशन. वो अपना पैथी को छोड़कर उन लोगों ने भी मेडिसिन को, चाहे वो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, वो भी मेडिसिन का प्रैक्टिस करने लगे, होम्योपैथी का वो भी मेडिसिन का करने लगे. मतलब एक बकरी आ गया, इतना इन्फ्लुएंस हो गया है. और उसका कारण था, प्रेशर था ड्रग लॉबी का कि हम जितने सिस्टम को डिस्कार्ड करें ताकि हमारा जो ये ड्रग है. लेकिन एक्चुअली में ये ड्रग पेट्रोलियम बेस्ड ड्रग, जो सेकेंड वर्ल्ड वाइड से दुनिया में इसको इन्फ्लक्स किया गया, और वो पेट्रोलियम बेस्ड ड्रग जो अभी है वो एक जहर के जैसा है. लेकिन इसको अमेरिकन लॉबी के द्वारा पूरे दुनिया में इसको इन्फ्लक्स किया गया, और आज क्या स्थिति है. जितने डॉक्टर हैं, ऐसा नहीं है कि सारे इस चीज को मानते थे. एक विंग ऐसा था जो यह देख रहे थे कि दवाई दे रहे हैं और ये बोल देते हैं मरीज को कि दवाई जिंदगी भर खाना, शुरू किया तो जिंदगी भर खाना है, और कोई भी प्रॉब्लम क्योर नहीं हो रहा.
कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम क्योर नहीं हो रहा है, सिंगल एनी प्रॉब्लम, तो क्यों नहीं क्योर हो रहा है? और वो जो दवाई खा रहे हैं उसका अपना एक साइड, पेट्रोलियम बेस्ड है, उसका अपना साइड इफेक्ट। जब ये हर्ब स्टैक दवाई होता था 150 साल पहले, उसका साइड इफेक्ट मिनिमल था, लेकिन अभी के जितनी भी दवाइयां, कोई एक दवाई ऐसा नहीं है जिसका साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि ये पेट्रोलियम बेस्ड मेडिसिन है। एनीवे, उन लोगों ने रिसर्च करना शुरू किया तो पाया कि बॉडी में एक पार्ट है, एक नेटवर्क है जो बॉडी को गवर्न करता है, बॉडी को कंट्रोल करता है, बॉडी के एवरीथिंग को, बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को शेप देता है। और वो नेटवर्क अनएड्रेस्ड और नेग्लेक्टेड था, और उसी वो नेटवर्क किसी भी मेडिसिन से इफेक्टेड नहीं होता है, अदरवाइज होता है। यही हमारा, तो ये जो बात दुनिया में आई उन लोगों के द्वारा, फासिया वॉरियर बोलते हैं उसको, या फासिया रिसर्चर, अब तो एसोसिएशन बन चुका है। तो उन लोगों ने फासिया वर्ड को कॉइन किया। पहले फासिया वर्ड नहीं था, फासिया की जगह समझा जाता था कि इन बॉडी वी हैव द कनेक्टिव टिश्यू which connect one to another. We have connective tissue which connect one muscles to another muscle, one bone to another bone, like ligament, right? तो ये सारे जो कनेक्टिव, बाद में इसको कहा गया रैपर है, क्योंकि ये मसल्स के चारों तरफ से रैप हैं, ये बोन के चारों तरफ से हैं, हर एक ऑर्गन को रैप करता है, जिसको रैपर भी कहा गया। लास्ट में फाइनली ये देखा गया कि बॉडी का कोई भी पार्ट नहीं है जो कि ये जो नेटवर्क है इसे बचा हुआ है। आखिर है क्या है? मैं पहले इसको हिंदी में समझाता हूं, फिर इंग्लिश में आऊंगा। तो यहां से फेसिया शुरू होता है कि आखिर ये है क्या। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं, ये मेरा डिफिनीशन है और मेरा समझाने का तरीका है। फेसिया का एग्जिस्टेंस यूनिटरी लेवल पर सेल मेम्ब्रेन से शुरू होता है। सेल का आकार कौन देता है? सेल मेम्ब्रेन। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो सेल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा। तो सेल मेम्ब्रेन यूनिटरी लेवल पर फेसिया है, और वो सेल को आकार देता है और उसे रक्षा करता है, मतलब उसे शेप देता है और उसे प्रोटेक्ट भी करता है। और ये भी उसमें एक इंटेलिजेंसिया है कि कौन सा फ्लूइड सेल के अंदर आए और क्या बाहर जाए, किस तरह से वो इंटरेक्ट करेगा। अब एक सेल और दूसरा सेल, एक सेल और दूसरा सेल, क्लस्टर ऑफ सेल आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, ये आपको पता है। जब टिश्यू बनाते हैं तो उसका भी जो इंट्रैक्शन है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है। और क्लस्टर ऑफ टिश्यू का भी अपना एक मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन, देन क्लस्टर ऑफ मेम्ब्रेन, देन tissue membrane, and then tissue membrane, cluster of tissue form the organ, and that has also the membrane. They all unitary level to organ level, they all are connected. समझ रहे हैं? और डिफरेंट ऑर्गन, पूरा बॉडी अलग अलग ऑर्गन से, लेकिन वो सारे ऑर्गन प्रोटेक्टेड हैं या सराउंडेड बाय द मेम्ब्रेन, एंड कोई भी मेम्ब्रेन कहीं से कटा हुआ नहीं है। सो मेम्ब्रेन स्टार्ट विथ यूनिटरी लेवल cell membrane, as a cell membrane, cluster of cell form the membrane, they also interconnected, and cluster of tissue form organ, they also connected by the membrane, and combination of organ form the body, they also connected by the membrane and covered by the membrane. So first membrane of the body
is under the skin. You see, under the skin is the first membrane of the body. And this is the first fascia and known as superficial fascia, right? Superficial fascia. अब देखो, स्किन के अंदर जो मेम्ब्रेन है, स्किन के ठीक नीचे पूरे बॉडी में है, और मैं अब आपको बता रहा हूं प्रोटेक्ट कैसे करता है। मेम्ब्रेन फेसिया क्या प्रोटेक्टर है। हम बोले कैसे प्रोटेक्टर, ये तो थिन लेयर है, राइट। आप फेसिया को पकड़ के बॉडी को उठा सकते हो, इतना ज्यादा इसमें स्ट्रेंथ है, टूटेगा नहीं, और ये देखा गया। तो ये पहला लेयर है जो बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है एक्सटर्नल जितने भी तरह के इन्वायरमेंट हैं जो हमारे लिए फेवरेबल हैं या अनफेवरेबल हैं। आपको पता है कि हीट एंड कोल्ड के एक्सपोजर से भी हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो फर्स्ट स्किन तो है, लेकिन स्किन के पीछे, स्किन के नीचे वो फर्स्ट लेयर है, वो है सुपरफिशियल फासिया। और पूरा इंटायर बॉडी एक यूनिफॉर्म लेयर से ढका हुआ है। अगर कोई नॉनवेज खाते हैं, अगर नॉनवेज की दुकान पर जाएं तो देखेंगे जब उसको फिल किया जाता है तो मेम्ब्रेन उसके पूरे बॉडी में एक यूनिफॉर्म मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन आगे जलता है मसल्स में अगर मेम्ब्रेन खत्म कर दिया जाए क्या होगा मालूम। मसल्स फाइबर है, मेम्ब्रेन हटा दिया जाए तो ऐसे करके, जैसे आप समझते भूसा, मसल्स बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। तो मसल्स को बाइंड करके रखने वाला जो मेम्ब्रेन है वो फेसिया है। तो उसको कहते हैं मसल्स का रैपर। तो ऐसा है, यू जस्ट इमेजिन वायर ऑफ ए insulated electric wire. Every wire is covered by the insulator, and then combination of wire, same structure with the muscles also, anywhere in the body. They all wrapped or surrounded by the membrane, and that is fascia. Not this, the nerve, artery, vein, that all coming out, all the body, they also surrounded by the membrane. Somewhere it seems like it is piercing and coming out and then going down. कहीं कहीं ऐसा लगता है कि ये जो हमारा नर्व है या जो आर्टरी है कहीं से निकलकर फिर दूसरी तरफ अंदर चला जाता है, फिर बाहर आ रहा है, लेकिन ये भी मेम्ब्रेन के द्वारा प्रोटेक्टेड है। एंड नर्व के चारों ओर जो माइलेशन है, द माइलेशन अराउंड द नर्व विच प्रोटेक्ट द नर्व, यू नो। अगर डीमाइलेशन हो जाए तो क्या होगा, नर्व बेकार हो जाएगा और उस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, ऐसा है भी, डीमाइलेशन ऑफ द नर्व। दैट इज अ फेसिया around the nerve, that layer protecting fascia. So you imagine anywhere in the body, no place you will find there the fascia is not. कोई भी जगह ऐसा शरीर में नहीं है, कोई भी ऑर्गन ऐसा नहीं है, कोई भी सेल ऐसा नहीं है जो फेसिया के द्वारा जुड़ा हुआ नहीं। तो फेसिया का पहला काम क्या हुआ, बॉडी को शेप देना, एंड दूसरा प्रोटेक्ट करना, प्रोटेक्टर। तीसरा कम्युनिकेटर, क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है। कैसे कम्युनिकेट कर रहा है,
ये पूरा नेटवर्क, this all whole network, they don't have any cut. The single largest part or single largest organ of the body, अभी तक इसे ऑर्गन माना नहीं जा रहा था, लेकिन अब ऑर्गन के रूप में है. It was not accepted, it was neglected, but now this so important organ, it has to be, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा. इसके बिना आप कुछ भी ठीक नहीं कर सकते. और इसकी अंडरस्टैंडिंग के बिना, मैं एक अलग लीक से हटकर थोड़ा सा जाता हूं. जब फेसिया का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है और ऑपरेशन करते हैं मेडिकल ऑपरेशन सर्जन, तो एक दो ऑपरेशन जिसका आउटकम मैं हर हमेशा देखता हूं और मैं ट्रीट करता हूं. लिम्फोडिमा, जब ब्रेस्ट कैंसर होता है, ऑपरेशन करके यहाँ के जितने फेसिया उसको निकाल देते, उससे उनको मतलब नहीं, फेसिया कुछ काम का है नहीं, निकाल दो. इसी तरह से नेक्रोसिस और कोई भी लिम्फ का ऑपरेशन होता, फेसिया वहां से ऑपरेशन के दौरान निकल जाता है. उसके बाद क्या होता है, बॉडी में इस जगह में इसका जो नेचुरल फ्लो है वो ब्लॉक्ड हो जाता है और धीरे धीरे वहां पर लिम्फोडिमा डेवलप, मतलब कि स्वेलिंग डेवलप होना शुरू होता है, मासेस डेवलप होना शुरू, और उसका कोई सोल्यूशन नहीं, कोई मेडिसिन नहीं. स्टॉकिंग्स पहनाते हैं, अगर पैर में होता है तो हाथ में भी पहनाते, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं. दर्द से परेशान रहते हैं. आई हैव सीन एंड आई हैव ट्रीटेड थाउजेंड ऑफ पीपल. ठीक है. सो फेसिया वाज नॉट गिवन प्रॉपर attention or importance. Now इसको देना पड़ेगा, क्योंकि you have to be result oriented. अब ये नहीं काम चलेगा, नहीं नहीं ऐसा होता है, हम कुछ नहीं कर सकते. No, you are also answerable. If you are giving treatment, you are answerable, whoever you are. आप MBBS और MD है तो क्या हो गया, आपको भी आंसर देना पड़ेगा. हमें तो आंसर देना ही पड़ता है. हमारे ऊपर तो पूरा आंसर पूरा होता है कि आप ये करेंगे तो ये क्या होगा, ये क्या हो गया, और अगर ऐसा केस हो जाए तो पूरा आंसरेबल है. तो फेसिया का मैं बता रहा था कि क्या काम है. बॉडी को शेप देना, दूसरा प्रोटेक्ट करना, तीसरा कम्युनिकेशन. फेसिया का अपना एक इंटेलिजेंस है. सो फेसिया गॉट द इंटेलिजेंसिया, एंड दैट इंटेलिजेंसिया इज द communication among the whole network. Right? This is very important. Try to understand this. So fascia network, fascia is a huge organ in the body. When you bring it out from the body and start trying to measure it, you can't. You just move whole the world and your body fascia never in. ये इतना बड़ा है कि बॉडी से फेसिया को निकालकर अगर आप इसको मेजर करने की कोशिश करते हैं, मेजर नहीं होगा. इतना बड़ा है, पूरा वर्ल्ड घूम जाएंगे फिर भी ये खत्म नहीं होगा. इस ह्यूज नेटवर्क, इस नेटवर्क में ऑल द टाइम सम कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस. व्हाट इज द कम्युनिकेशन? हियर दिस कम्युनिकेशन एक्चुअली फ्लो ऑफ एनर्जी. This was the crux point for me. This was the only thing which I taken from this fascia association. This idea, all the time energy flow in the fascia network. In yoga we are lacking. हम लोग लैकिंग कर रहे थे कि एनर्जी फ्लो कहां करता है. बोल देते थे कि नाड़ी में करता है, लेकिन नाड़ी कहां, फिर वो मुश्किल हो जाता था हमारी. नाउ
It is exact thing, exact pathway in which prana flow. So energy flow. Now, energy was not accepted earlier. In medicine, there was a golden sentence, and that golden sentence, once a person start with medicine, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं, मेरे एमबीबीएस जितने स्टूडेंट हैं, बहुत सारे एमडीए स्टूडेंट हैं या बहुत कलीग भी हैं, तो मैं उनसे चर्चा करता हूँ, क्या आप लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें क्या ये बात बताई जाती है, कहाँ कहीं लिखा हुआ है गोल्डन से? मैंने किसी एमबीबीएस सर्जन के बुक में ये पढ़ा था, डॉक्टर नकाटा, हिरोशी नकाटा जापान के हैं, वो एमबीबीएस एमडी सर्जन, उन्होंने एक सिस्टम डेवलप किया, ट्रीटमेंट मेथड बेस्ड ऑन प्रिकलिंग सिस्टम, दैट इज नोन एज पीएनएसटी। तो उन्होंने लिखा था कि इट वाज रिटन एंड दैट once a patient start with medicine, must die with medicine. Once a patient start with medicine, must die with medicine. And why this is the golden sentence? With this sentence, you are not allowing anybody to leave the medicine. इसके साथ आप किसी भी पर्सन को मरने से पहले आप अलाउ नहीं करते हो कि वो मेडिसिन छोड़े या मेडिसिन छोड़ने की कोशिश करे। तो इसका मतलब कि ड्रग का कहीं से कोई यूज में कमी नहीं आए। ये ड्रग लॉबी का एक तरीका है, साजिश कह लीजिए या जो भी कह लीजिए। It was the only pressure from the drug lobby, nothing else. Now, so come to the matter. So we have a study, there are 3 functions. The first function is the protector, second is giving shape, and third communication. What kind of communication? What kind of communication? Energy flowing is the communication. How your system will work, that is decided by this network. थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा अलग ले जा रहा हूं और थोड़ा समझाने के लिए। कहीं भी anywhere in the body, when this communication taking place smoothly, without any block, without any hindrance, you are very healthy person, very healthy. But you come to contact some accident, okay? Like you have here, bruise your shoulder. So here, something happened and that create entanglement, उलझन, इसमें फेशिया कम्युनिकेशन। तो वो क्या किया? ब्लॉक कर दिया। फेशिया वहां प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे करके, जैसे आप किसी पर हाथ उठाएंगे तो क्या होगा? ऐसे करते हैं। सेम वे फेशिया उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको ब्लॉक कर दिया। नेचुरली अगर आपका लाइफ स्टाइल, मूवमेंट सब कुछ ठीक है तो ओवर पीरियड टाइम ये जो एक्सीडेंट का इम्पैक्ट है वो आपका ठीक हो जाएगा। बट अगर नहीं है तो ये जो इम्पैक्ट है वो धीरे धीरे बढ़ते हुए वो क्रॉनिक हो जाएगा। इस इंटेंगलमेंट को कहते हैं एनर्जी ब्लॉकेज। और इसी ब्लॉकेज को सबसे ज्यादा आसानी से आप दूर कर सकते हैं थ्रू acupuncture, and this kind of acupuncture is known as fascia acupuncture, to removing this kind of entanglement. तो जहां पर हुआ वो क्या है? कोई भी दर्द, कोई भी कंडीशन पेन का, that condition is inflammatory condition. There your own immune system work. That inflammatory condition
is nothing entanglement of the fascia, and that block the fascia communication. You need to unblock, and fastest way of unblocking this fascia communication or removing this entanglement is known as fascia acupuncture. Now, fascia network is clear, and work of fascia, the communication. Fascia is also mover, move कर रहा, communicate कर रहा तो क्या करेगा, move करेगा. So it is a like dancer, dance कर. मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, आप देखेंगे, फिर उस देखने के बाद आपको समझ में आएगा. तो वीडियो तैयार है? ओके, अभी हम इसे खत्म कर लेते हैं टॉपिक को, फिर आपको दिखाएंगे. तो ये इस तरह का इसका मूवमेंट है बॉडी में, और जितना ये मूवमेंट है, ये मूवमेंट किस पर डिपेंड करता है, आपके बॉडी के. मैंने अभी एक वर्ड बोला था कि अगर एक्सीडेंट हो गया तो नेचुरली बॉडी में ये कैपेसिटी है कि हील करे. बॉडी हैज गॉट द ट्रेमेंडस कैपेसिटी टू हील इटसेल्फ, बट if you give the opportunity, and that opportunity depend on your 2 or 3 things. One, water. Second, your lifestyle. Third, your mental condition. If you met with accident और ये आप सोचते हो अरे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और अपने खाने को ठीक रखते हो और प्रॉपरली वाटर, अपने सिस्टम को वाटर दे रहे हो, ये सब हम एक्सप्लेन करेंगे, तो आपका ये बहुत जल्दी हील हो जाता है. मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया और मेरे बहुत सारे कलीग हैं इस पर, यहां तक कि आपको ये बताऊं कि व्हेन यू हैव ब्रोकन बोन एनीवेयर, व्हाट इज द रोल ऑफ द मेडिसिन? नथिंग. बॉडी हील इटसेल्फ. आप क्या करते हो? प्रॉपर रेस्ट देते हो. अगर कैल्शियम नहीं तो कैल्शियम खाते हो, जल्दी ठीक हो. मतलब कि आपके बॉडी में वो सारे एलिमेंट हैं तो बॉडी हील जल्दी करता है. सेम वे फेशिया कम्युनिकेशन अच्छे तरीके से होता है तब जब आपका लाइफ स्टाइल ठीक है, आपका वाटर का इंटेक ठीक है, क्वांटिटी एंड क्वालिटी इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, एंड आपका मेंटल कंडीशन ठीक है. मेंटल कंडीशन का मतलब हो गया कि फेशिया is a dancer, communicator, but at the same time it is the mind. ब्रेन नहीं, ब्रेन नहीं. तो फेशिया का कम्युनिकेशन आपके मेंटल कंडीशन से. इट विल मूव, इट विल कम्युनिकेट अकॉर्डिंगली योर मेंटल कंडीशन. आपका मन का स्थिति जैसा है. अब देखिए, इसको कहते हैं फेशिया का बैड मेमोरी रिटेन करना. 2 तरह का आदमी देखो. अगर आप ट्रीटमेंट देते हो तो आपके क्लिनिक में कुछ पेशेंट आते हैं और ऐसे करके रोते ही हुए आएंगे, हाय माँ मैं तो मर गया, मैं मर गई, मेरा प्रॉब्लम ठीक होगा ही नहीं, आई एम इन द वेरी वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, हेल्प मी, आई एम नॉट गोइंग टू लीव, आई एम डाइंग. जितनी बार वो रिपीट करते हैं डाइंग, एक अलग बात है, इसको आप निगेटिव बोलते हैं, लेकिन ये सच है, इट्स ट्रू. जितनी बार वो वर्ड रिपीट होता है उतनी बार वो इको होता है. resonate, you understand? It resonate and it increase the fascia blockage or it hamper the fascia communication. So negative mental attitude के लोगों का ठीक होना थोड़ा सा दिक्कत होता है due to this memory enhancement. कौन सा मेमोरी? ट्रॉमेटिक मेमोरी बोलते हैं, फेसिया ट्रॉमेटिक मेमोरी. Fascia traumatic memory will enhance with the repetition of your pain or about the pain experience, the mind on in the world.
जैसे भी। तो माइंड का बहुत ज्यादा, मेंटल कंडीशन का बहुत ज्यादा रोल है। तो अभी तक हमने क्या क्या समझा? फेसिया क्या है, फेसिया नेटवर्क क्या है, और फेसिया का काम क्या है? व्हाट इज फेसिया, व्हाट इज फेसिया नेटवर्क, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ फेसिया? इज इट क्लियर all of you? If not, you can raise your hand, you can ask, I will again make you understand. अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है, वेरी बेसिक, इट इज वेरी बेसिक। एनीबॉडी, एनी डाउट अप टू हियर? Okay, so now I would like to show you the live fascia movement through the video. Just take care. Start. मुझे नहीं दिख रहा। स्क्रीन आ गया है एंड प्लेटफॉर्म नहीं है। हाँ करो, कोई बात। Just wait, something went wrong. ये देखिए, फेसिया मैंने क्या कहा, मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के रूप में आप देखिए, बस you just see the figure, how it is moving. And it is a network. It is a wide representation model. It's not, now you can see this is, ये सुपरफिशियल फेसिया है, जो स्किन के नीचे और जो मसल से बाइंड किए हुए, एक तरह का, इस तरह का झिल्ली है, इस तरह का नेटवर्क है, मेस है। आप देख रहे, ये पूरे बॉडी में, और इसका मूवमेंट इस तरह से होते रहता। मैं वीडियो खत्म होने के बाद में बताता हूं। इसमें इतना ज्यादा इलास्टिसिटी है, इट हैज द स्ट्रेंथ एंड द इलास्टिसिटी, इट इज मोर स्ट्रॉन्ग देन द स्टील and more flexible than the steel. You can stretch it out, but it never break. That's why it is very flexible. Internal fascia movement, ये लाइव फेसिया का डेमोन्स्ट्रेशन देखिए, ये फेसिया है, ये उठाकर दिखाइए, these all are fascia. Everywhere, the yellow and the white, these all the fascia network, and it is everywhere. इसको रिजिड स्ट्रक्चर के द्वारा भी समझाया गया।
and that structure is known as tensegrity. You have heard about the doom, which ये उंगली के अंदर का लाइव फेसिया आपको दिखाया गया था। और ये फेसिया देखो, जैसे समुद्र में मछलियों का झुंड होता है तो किस तरह से मूव कर रहा है, डांसिंग, सेम लाइक फेसिया डांस inside the body. It is the fish in the sea movement, same fascia dancing in the body. You can see same manner, fascia movement in the body. So fascia is a great dancer. Okay, stop. इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि हमारे बॉडी में फेसिया कैसा होता है, फेसिया का नेटवर्क कैसा होता है और उसका मूवमेंट कैसा होता है। अगर फेसिया मूवमेंट कर रहा है तो क्या इन्वायरमेंट चाहिए उसको। So the movement of the fascia is depend on the water only. That's why only one thing is required is the water, and rest of the things also, but water is the most, because 70% fascia body or our body is based on the water. अब इतना थ्योरी हो गया, थोड़ा सा भारी हो रहा है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसे, आपको आगे समझाते हैं कि हम लोग इसको पढ़ क्यों रहे हैं। Why? बॉडी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, राइट, फॉर एग्जाम्पल लीवर में अकोमोलेशन हो गया और लीवर फैटी हो गया, राइट। तो लीवर का फंक्शन जो है, जो फैटी हो गया अकोमोलेशन, वो क्या है, जो फेसिया है वहां पर लीवर को बाकी के बॉडी के फंक्शनिंग से अलग कर दिया और उसको क्या कर दिया, प्रोटेक्ट कर दिया, और वो टाइट हो गया, लीवर हार्ड, और धीरे धीरे लीवर इंफ्लामेटरी कंडीशन में जाने लगा। इंफ्लामेटरी कंडीशन में जाते जाते एक समय ऐसा भी हो सकता है कि लीवर सोराइसिस हो सकती है, और जितनी भी तरह के लीवर का कंडीशन है वो हो सकता है। इन मेडिसिन आप तभी जानोगे जब आप बहुत ही बीमार पड़ जाओ, या तो जॉन्डिस हो जाएगा, या सोराइसिस होगा, या हेपेटाइटिस ए बी सी जो भी है वो होगा, तब आपको पता चलेगा। लेकिन अगर आप फेसिया कम्युनिकेशन को समझते हैं तो बिल्कुल आप खुद डायग्नोज कर सकते हैं। कम से कम लीवर, देखिए लीवर का मैं बता रहा हूं, इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट। राइट साइड लीवर है, आप रोज नहाने वक्त में अपने हाथ को ऐसे फेरिए या सोने वक्त में फेरिए, हल्का सा प्रेस कीजिए। आप जब सोएंगे लीवर ऐसे, अगर फैटी लीवर है तो हल्का प्रेस करेंगे तो वो दर्द करेगा और बाहर निकला हुआ रहेगा। सिंपल। आपको ऐसा लगता है तो आप गो फॉर द अल्ट्रासाउंड एंड गो फॉर द LFT, तुरंत आप पता चल जाएगा कि लीवर आपका क्या कंडीशन है। ठीक। सो फॉर ट्रीटमेंट, liver treatment, you don't have very good medicine to take care of immediately. एंटीबायोटिक की तो मैं बात ही नहीं करता, उस जगह उस प्लेस में जाना क्यों। अभी क्या हो रहा है, लीवर के कंडीशन खराब होने से पहले जो डायबिटिक कंडीशन है तब आएगा जब फैटी लीवर हो।
फैटी लीवर, ये इंडिकेशन है कि आपका पेनक्रियाज का फंक्शन भी ठीक नहीं होने वाला है। फिर आपका इंडिकेशन है आपके हार्ट के ऊपर इसका प्रभाव पड़ने वाला है। यू आर गोइंग टू बी हाइपरटेंसिव और इन्फ्लामेटरी, मे बी यू हैव द स्किन डिजीज। ये सारा लीवर की कंडीशन हो रहा है, ये सारा कुछ। वेरी वेरी सिंपल डायग्नोसिस। नाउ वी हैव वेरी इफेक्टिव treatment for the fatty liver or liver inflammation. Two part. One part is acupuncture. I told you, acupuncture is the fastest way to correct fascia blockage or remove the fascia entanglement. तो अगर inflammation है तो वहां पर फासिया इंटेंगलमेंट है, वहां पर ब्लॉकेज है। अब उसको दूर करने के लिए हम लोग बहुत ही आसानी से करते, क्या करते हैं, मैंने पिछले वीडियो में कई लोगों को दिखाया भी। मैं सॉल्व कर रहा हूं डायबिटिक कंडीशन को, तो डायबिटिक कंडीशन को करने के लिए लीवर को एड्रेस करना होता है। मैं बताऊंगा, लेकिन अभी इंटरेस्टिंग, आपको इंटरेस्ट हो इसीलिए मैं ये शेयर कर रहा हूं कि लीवर को पहले डायग्नोज करो। डायग्नोज करने के बाद इस तरह से आप अलग अलग फेसिया के अलग अलग ऑर्गन को आप डायग्नोज कर सकते हो एवरीडे, कहां कोई तकलीफ है या नहीं। एक तो खुद आपको इंडिकेशन मिलेगा, यू कैन अंडरस्टैंड, और दूसरा आप पल्पेट करके, तो फेसिया को आप महसूस अपने हाथों से अपने ऊपर और दूसरे के ऊपर भी आप ही करेंगे। वो अब मैं आ रहा हूं, इसको कंप्लीट कर देता हूं। लेट मी कंप्लीट दिस। सो यू पुट, सो देयर आर, मैं प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि रिब, लास्ट रिब कॉर्नर में डाउन एंड 4 इंच अप, ये जो 6 इंच का एरिया है रिब के अंदर और बाहर, और पूरा जो एरिया वो लीवर एरिया है राइट से। और इस एरिया में कहीं भी 1 इंच का निडल 2 लगाइए, और कहां लगाएंगे वो हम लोग आगे सीखेंगे। तो आपका लीवर का इन्फ्लामेशन जाने लगेगा, लीवर करेक्ट होने लगेगा। वेरी सिंपल। अब आते हैं और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे इस क्लास को, कि फेसिया एक्यूपंक्चर फास्टेस्ट वे है, तो कैसे करेंगे? हाउ? इज देयर समथिंग टू रिमेंबर? इज देयर समथिंग टू लर्न? यस, इज देयर समथिंग टू लर्न, बट देयर इज नथिंग टू रिमेंबर। समथिंग टू लर्न, लर्न तो करना ही पड़ेगा, लेकिन नथिंग टू रिमेंबर, बिकॉज इसमें पॉइंट नहीं है। तो अब हम जब निडल की बात करते हैं, यू prick or insert needle, where you put the needle, in the muscles or in the bone? Where? It is only muscle, it is only muscle. कहीं भी करोगे मसल में ही करना होगा, never in the bone. So forget the bone. Now you just understand yourself and feel your whole body, where the muscles are and how much. How much means the thickness of the muscles. Thickness of the muscles has deep significance. कहीं पर बहुत, कहीं पर बहुत ज्यादा मसल्स होता है, थिक और थिन. Accordingly, we select the length of the needle. Accordingly, we select the length of the needle. Right? हमें कितनी बड़ी निडल का सिलेक्शन करना होगा वह मसल्स पर डिपेंड करता है, और हमें हमारी जरूरत क्या है. फॉर एग्जाम्पल, हमें जरूरत है, वी नीड टू एड्रेस ओनली सुपरफिशियल फासिया. बिफोर मूविंग अहेड,
Here the word superficial fascia. Superficial means ऊपर का. And there is another contrary to this, deep fascia. Deep fascia मतलब अंदर का, right? तो सुपरफिशियल फेसिया को अगर हम एड्रेस करें, हमारा तरीका अलग अलग हो सकता है. अगर इंटेंगलमेंट सुपरफिशियली है तो आप सुपरफिशियली उसे दूर कर सकते हो, राइट? तो सुपरफिशियल इंटेंगलमेंट को दूर करने के लिए सुजोक निडल भी काम कर जाए. मतलब उसको कहते हैं स्किन प्रिक, राइट? और यहां तक कि हमने एक और तरीका खोजा कि आपको निडल इंसर्ट करने की भी जरूरत नहीं. यू हैव टू ओनली प्रिक. एंड जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, डॉक्टर नकाटा, नकाटा पेन, हिरोशी नकाटा, he was the, no, he is alive, sorry, he is the neurosurgeon in Osaka, Japan, and he is the originator of one discipline which is known as peripheral nerve stimulation, PNST. In that, it is based on the dermatome, and this is Nakata pain, and this pain used to prick where you need to prick. तो प्रिकिंग से ही सुपरफिशियल फेसिया का इंटेंगलमेंट खत्म हो जाता है. अब इसके जगह आप कोई भी नुकीला पॉइंटेड कोई भी टूल से आप प्रिक कर सकते हो और सुपरफिशियल फेसिया की इंटेंगलमेंट को दूर कर सकते हो. इसी तरह से डीप फेसिया इंटेंगलमेंट है तो वहां पर मसल्स के थिकनेस के हिसाब से आपको निडल को यूज करना होगा. तो निडल की लंबाई एक, विदाउट निडल, नो निडल, एंड सो देयर आर डिफरेंट वे टू रिमूव इंटेंगलमेंट और रिमूव फेशिया ब्लॉकेज विदाउट एक्यूपंक्चर एंड विथ एक्यूपंक्चर. विदाउट एक्यूपंक्चर, with acupuncture. Without acupuncture, this is the pricking method. Another is cupping, fire cupping, or bamboo fire cupping. Third is heating. वो दिखाएंगे, दिखा देंगे, प्रैक्टिकल में दिखा देंगे. आप बस नोट डाउन कर लो. Fourth is movement. Movement means exercise, yoga, whatever. ये सब without acupuncture. Next one is food. Food and lifestyle. इसको कंप्रेहेंसिवली हम लोग बाद में करेंगे, अभी केवल पॉइंट लिख लीजिए. नेक्स्ट वन इज वाटर. वाटर क्वांटिटी एंड क्वालिटी. इफ यू आर ड्रिंकिंग अंडर, मान लो 3.5 लीटर आपको चाहिए बॉडी को, आप पीते हो 2 लीटर, तो 1.5 लीटर आपके फेसिया को डिहाइड्रेट करता है. एंड फेसिया एट द सेम टाइम brain cells dehydrated, whole body dehydrated, and then fascia stuck, and you become very severely diseased, जिसका कोई क्योर नहीं है. पार्किंसन, एल्जाइमर, जितने भी न्यूरोटिक प्रॉब्लम है, ये वाटर डिहाइड्रेशन से होता है. एंड क्वालिटी, यू मस्ट ड्रिंक alkaline water full of mineral and electron rich. What is this? I will tell you. So अगर आप नॉन एक्यूपंक्चर वे में करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं. We will explain everything, we will cover everything, but point अभी आप लिख लो. Now एक्यूपंक्चर में you start with the Sujok needle. So dermal prick. Where you do the dermal prick? Sujok acupuncture, auricular acupuncture, eye acupuncture, face acupuncture, sometimes a scalp also, some people. So this is the superficial pricking or needling.
So these are the microsystem which you use to remove fascia entanglement. Now come to the point. Directly you use needle where the entanglement take place. मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. आपका केहनी में, एल्बो में इंटेंगलमेंट हो गया, मतलब दो तरह की बात हो सकती है. देयर आर टू थिंग्स. एक इंफ्लामेशन हो सकता है और एक चोट लग सकता है, ब्रूज. दोनों कंडीशन में चोट लगे तो भी इंफ्लामेशन होगा और बिना चोट लगे भी इंफ्लामेशन हो सकता है. रिमेंबर, बिना चोट लगे भी इंफ्लामेशन हो सकता है और चोट लगने के बाद भी इंफ्लामेशन हो सकता है. इन बोथ कंडीशन व्हेन यू आर गोइंग टू treat this, you have to prick not on the inflammatory area. फेसिया में यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है. जहां पर प्रॉब्लम है वहां आप निडिल नहीं लगाओगे. नेवर 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 नेवर. निडिल लगाओगे तो बहुत बड़ा गड़बड़ हो जाएगा. सो हेयर उलझन है. So when you try to remove entanglement here, what things you have to keep in your mind? यहां से फेसिया एक्यूपंक्चर शुरू हो रहा है, ध्यान दीजिएगा वेरी केयरफुली. सो देयर इज नो पॉइंट. आप जहां इंफ्लामेशन है आप सारे मसल्स को देखना शुरू कीजिए. आपको मैंने कहा था, क्या कहा था, अब हम एक एक करके मसल्स पर जाएंगे, बट अभी केवल आपको एक फेसिया एक्यूपंक्चर का आइडिया दे रहे हैं. तो इसके ऊपर मसल्स है और इसके नीचे मसल्स है. हम यहां से टच करना शुरू करेंगे. योर फिंगर और पाम इज योर व्हाट, एक्सरे और व्हाट, एमआरआई. तो आप मूव करेंगे, टच. यू मस्ट हैव ग्रेट सेंसेशन. टच जैसी कर रहे हैं तो आपको कहीं ना कहीं एक जगह मिलेगा जहां पर ये वीक है. यहां इन्फ्लामेशन है तो हार्ड है, लेकिन इन्फ्लामेशन के बाद कहीं भी इधर या इधर हर जगह आप अपने हाथ को मूव करेंगे. तो वीक का क्या मतलब हुआ, या तो वो पिलपिला होगा या वहां हल्का गड्ढा होगा. तो ऐसे जैसे हाथ जा रहे हैं तो गड्ढा मिलेगा. दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ दिस इंटेंगलमेंट. ठीक है. व्हाट इज दिस? फिर अगेन मैं इसे रिपीट करता हूं. इफ यू वांट टू ट्रीट द इन्फ्लामेशन ओवर elbow here, you have to just see the muscles area and find out the weak area around this, near to this, up and down, wherever. And that weak area is, you feel something flaccid, some depression is there. This is the exact point where you prick. This is the only rule for the fascia needling. Only rule. Very simple. Very simple. You need not to remember anything else. Place where entanglement take place, you need to find out the weak area. लिख लीजिए, weak area or flaccid area, and then you prick the needle. Then you prick the single needle. Prick the single needle.
right? After pricking single needle, if it is weak, there are two conditions may arise. As soon as you prick, great pain come. Oh, okay, leave it. Second condition, when you prick, no pain. Start moving. फेसिया क्या है? डांसर है, डांस कर रहा, मूव कर रहा, आप उसी हिसाब से निडल को प्लेस करेंगे, मूव करेंगे. After few seconds, pain comes with a electric jerk. Ah! After some times, then some response come. Ah! This is jerk, right? Then you leave it. Second condition में जहां jerk आ रहा है, ये वहां होता है जहां वीक एरिया है. इन्फ्लामेशन चूंकि यहां नहीं है, लेकिन इन्फ्लामेटरी कंडीशन में ये इलेक्ट्रिक जर्क बहुत कम होता है. When you find out this jerk, first time you just do it and leave it for some few seconds or minutes. Second time again. इसको कीजिए, करके प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा. ये प्रैक्टिकल की बात है, अभी थ्योरेटिकली आपको बता रहा हूं. तो सेकेंड टाइम करेंगे, फ्यू सेकेंड कुछ नहीं आ रहा है, और अचानक से सेकेंड टाइम हो गया. Then leave it for few seconds and then try third time. थर्ड टाइम पेन नहीं आ रहा है. अगर थर्ड टाइम भी आए फिर आपको छोड़ना पड़ेगा. तो मैक्सिमम 3 टाइम्स और निडल निकाल लेते. देन आप बोलो फील करो नी का पेन. ओह 80% गॉन, चला गया. 20% है. तो क्या हुआ? 1 पॉइंट. नो सर्च फॉर द अनदर. सर्च फॉर द अनदर. यहाँ क्या है? देयर इज नो नथिंग, नो पॉइंट, only the muscles and only your feeling. Everything is your feeling. Everything you're feeling. So never put doubt in your mind when you are finding. और यहाँ है, नहीं नहीं यहाँ नहीं है. ये अगर करोगे then you are creating confusion and then there will be no result. ये भी है. So when you are doing this work, just clear in your mind. Oh yes, this is yes, yes. Then put needle, you will get the result, right? So no confusion. उसका भी कारण है, वो मैं बताऊंगा. तो मैं क्या बता रहा था कि फेसिया के निडलिंग के लिए जहां इंटेंगलमेंट है, आसपास आपको फ्लैसिड पॉइंट खोजना पड़ेगा, और वहां पर एक सिंगल निडल देंगे, और उसमें पेन, दो कंडीशन का पेन आता है और पेन नहीं आता है. जब वीक एरिया होता है तो पेन शुरू में नहीं आता, और उसके बाद थोड़ी देर बाद पेन आता है और जर्क महसूस करते. 3 टाइम्स करके उसको निकाल देते. बट देयर इज अनदर कंडीशन. एज सुन एज यू पुट निडल, यू फील पेन. पेशेंट स्टार्ट क्राइंग, ओह माय गॉड, बहुत ग्रेट पेन, हटाओ 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 हटाओ, बहुत ज्यादा दर्द, हटाओ हटाओ. ओके ओके लीव, ओके 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 ओके. आप एक निडल, उसके बाद से थोड़ा देर उसे छोड़ दो. Now search for the another place and put another needle. And then दो needle मिल गया, you just give electricity, means electric stimulation. खासकर जो inflammatory condition होगा उसमें. इसको नोट कर लीजिए. inflammatory condition को डील करने के लिए हमें 2 needle की जरूरत है, और जहां इंफ्लामेटरी कंडीशन नहीं है, वीक एरिया है, उसके लिए सिंगल निडल से काम चलता है. तो सिंगल निडल इज द मोस्ट इफेक्टिव. बट अगर निडल लगाते ही पेन हो रहा है, तब आपको इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देना पड़ेगा. हो गया 2 वे. ठीक है. अब
what the next thing. This was the only rule, or whatever you understand. Finding out the weak place and flaccid. Weak place with flaccid or depression. Okay. Pricking needle, giving no pain, and after some times coming pain, you use single needle. If pricking needle, pain comes simultaneously, you use 2 needle and give the stimulant. That's it. This is the fascia acupuncture. Now, second thing, what else you need to take care or you keep in your mind? दूसरा चीज क्या है? Simple muscles. जिस मसल्स में कर रहे हैं, क्या वो कौन सा मसल्स है, किधर से आ रहा है, किधर को जा रहा है, उस टोटल मसल्स की कितनी लंबाई है, और इस एरिया में कितने मसल्स, ये थोड़ा सा भारी बनने जा रहा है. अभी तक तो बहुत इजी था. नाउ सीम्स लाइक ओहो मसल्स. डोंट वरी. मैंने जो आपको एक ऐप कहा था डाउनलोड करने के लिए, अगर डाउनलोड हो गया तो उसके सारे मैं आपको दिखाऊंगा कि वेरी इजी टू अंडरस्टैंड द मसल्स डायरेक्शन एंड देन प्रिकिंग द नीडल. सो वीक एरिया को फाइंड आप अपने हाथ से कर सकते हैं, राइट, बट समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट. देन इन दैट कंडीशन you need to work out differently, and that different method is known as muscles testing. That is very separate for things, but हम उस पर थोड़ा सा उस पर भी लेंगे, चर्चा करेंगे, दिखाऊंगा मैं. लेकिन muscles testing altogether different thing, and it is learned separately. But आपको muscle testing के द्वारा you can find out the weak muscles and you can treat. तो अब यहां पर दर्द है तो यहां आप मसल टेस्ट क्या करोगे? Anywhere in the body problem is there. It is not necessary you have to prick needle around there. आप जब मसल्स टेस्ट करने जाओगे तो आप लोअर लिम्ब से शुरू करोगे, फिर अपने ट्रंक को करोगे, नेक एंड हेड, शोल्डर एंड हैंड. ये पूरा किसी भी एक प्रॉब्लम के लिए ये पूरे एरिया के मसल्स को टेस्ट करने पड़ेंगे, और टेस्ट करने के बाद उसे प्रिक करेंगे तो प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म होगा. अदरवाइज जब लोकल एरिया को करेंगे तो कुछ समय के बाद या कुछ दिन के बाद फिर भी वो प्रॉब्लम पेन आ सकता है. वो पेन कब नहीं आएगा? जब पूरे बॉडी में जितने भी वीक मसल्स हैं उसको हम ठीक कर देंगे तो पेन नहीं आएगा. मतलब when you treat all the weak muscles entire body, and we will start with the lower limbs and then coming up and then, तो ऐसे में with the people having the knee pain, start with the lower limbs and coming up to the thigh. Wherever you find the weak area around the knee and apart from the knee, you just do this fascia acupuncture. Immediately you will find the relief in the knee pain, and knee structure start what? Correcting. This is the beauty of fascia acupuncture, right? So मसल्स टेस्ट ये हो गया अदर पार्ट. तो अभी तक हमने क्या कवर किया? थोड़ा सा क्विक रिवीजन. सेकेंड पार्ट में जो कवर किया नीडलिंग के लिए कि when you try to solve the entanglement, fascia blockage, तो there are non-acupuncture way, और वो जो है वो है आपका प्रिकिंग मेथड. कोई भी नोकीला चीज से आप प्रिक कर रहे हैं तब भी इंटेंगलमेंट दूर हो सकता है. इसके अलावा हीटिंग मेथड, इसके अलावा मूवमेंट, इसके अलावा योर वाटर,
your mental state and your lifestyle, diet. अगर इससे ठीक नहीं होता है तब आप इमीडिएटली क्योर कर सकते हैं एक्यूपंक्चर से। एक्यूपंक्चर के दो तरीके हैं, एक जहां पर प्रॉब्लम है उसके पास में जाकर हम ट्रीट करते हैं और इंटायर बॉडी के वीक मसल्स को ट्रीट करते हैं तो जड़ से खत्म हो जाता है, या फिर माइक्रो एक्यूपंक्चर का सहारा लेते हैं। बट माइक्रो एक्यूपंक्चर में एक चीज है जिसे और आपको कवर करना पड़ेगा, लाइक ऑरिकुलर, व्हेन यू आर गोइंग टू डू ऑरिकुलर। अब कोई भी कंडीशन है बॉडी में, हम इसी का एग्जांपल ले रहे हैं, इल्बो पेन है तो उसका इल्बो का करस्पॉन्डेंस पॉइंट है और उसका एसोसिएटेड पॉइंट होगा, वो हम ईयर में निडलिंग करेंगे या जो भी ट्रीटमेंट देंगे। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द रूट। फेसिया के तरफ से मसल्स के वीकनेस को खत्म करके रूट को क्योर कर सकते हैं, लेकिन जब माइक्रो एक्यूपंक्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यू नीड टू लर्न द फाइंडिंग, सो यू नीड टू लर्न द diagnosis so that you need to confirm what is the root cause of any problem. And the diagnosis method are the Nari Parikshan, tongue diagnosis, and the pulse diagnosis, the eye diagnosis, and there are different way of diagnosis. These diagnosis, if you come to know the root, then you better fix the any kind of problem with the root. अगर ये नहीं जानते, केवल आप फेसिया करना जानते हैं and you want to do only fascia, then local area में करने के लिए you have to find the what are the things you have write down, the weak place, weak area adjacent to the inflamed area of the body, जहां ट्रीटमेंट जरूरत है उसके आसपास अराउंड कौन सा वीक मसल्स, एंड वीक मसल्स always having flaccidity, pilpilapan, and depression little. This is the exact point for the needling. And how you will needle, single needle according to based on the depth of the muscle, put single needle. And while you are putting, there is no pain. And after few seconds, when you put needle, give the stimulation like this, then pain comes with the electric jerk. Listen, do like this. Then you need not to put any other needle, single needle will work, and leave it for sometimes, and again do, again feel jerk. 3 times, after 3 times jerk will go away, and that place, the fascia unblockage take place, means the communication rush. फेसिया का जो कम्युनिकेशन जैसे यहां डालोगे तो क्रश करे क्या हुआ, और वो करेक्शन करने वो जैसी गया तो जहां ब्लॉकेज फेसिया है वो फेसिया का ब्लॉकेज खत्म हो जाता है, माने इंटेंगलमेंट खत्म हो जाता है, राइट। अगर दूसरा है कि डालते ही आपको पेन आ गया, देन यू गो फॉर द अनदर प्लेस आल्सो एंड पुट 2 नीडल एंड गिव द स्टिमुलेशन। ये अभी तक हमने पढ़ा, और उसके बाद हमने ये भी पढ़ा कि फेसिया के मसल्स को हम फाइंड आउट करेंगे, अदरवाइज इन द होल बॉडी टू रिमूव द रूट कॉज ऑफ द बॉडी। अगर होल बॉडी के फेसिया के वीक मसल्स के वीक एरिया को हम प्रिक करके ठीक करते हैं, वीक एरिया में कहा एक ही नीडल लगती है ना, वीक होगा तो एक ही नीडल, 3 बार करेंगे और खत्म। इस तरह से करते हुए थोड़ा लंबा समय लगता है, लेकिन वो रूट ट्रीटमेंट हुआ। इसे आप पूरे बॉडी के प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। अभी जो हमने बताया थ्योरेटिकली, क्या आप लोगों को क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन है? पूछिए। नहीं, वेरी गुड। हेलो 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 सर 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 सर
हाँ हाँ बोलिए। सिंगल निडल का यूज कब करना है, सिंपल भाषा में बता दीजिए। डबल निडल का यूज करंट के साथ कब करना है, सिंपल भाषा एक बार देखिए, रिपीट करिए। हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ही निडिल डाले, वीक एरिया आपने खोजा, ठीक, निडिल डालते ही आपको पेन आ गया, पेन आ रहा, पेशेंट कर डॉक्टर साहब क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, रिलैक्स रिलैक्स, ये एग्जैक्ट पॉइंट है, आप रिलैक्स हो। फिर दूसरा पॉइंट खोजो और उसे स्टिमुलेट करो। ये कहाँ है जहां इन्फ्लामेशन है, ऐसा कंडीशन आएगा। लेकिन बॉडी के अदर पार्ट में जब आप वीक मसल्स को ट्रीट करने जा रहे, वहां इन्फ्लामेशन नहीं बट वीक है, यू नीड टू ट्रीट दैट। तब निडिल डालेंगे, पेन नहीं आएगा, निडिल डालते ही पेन नहीं आएगा। व्हाट हैपेंड आफ्टर समटाइम्स, आफ्टर पुटिंग निडिल and then you start dancing with the needle. Fascia is a dancer, always dancing, you also dance slowly. ऐसा नहीं कि देंगे ऐसे ऐसे करने नहीं, slowly, बड़े प्यार से। Then fascia rests there, that fascia intelligence rests there. तो वहां पर आपको इलेक्ट्रिसिटी आएगी थोड़ी देर के बाद, और पेशेंट बोलेगा देन आप छोड़ दो, कितने देर के लिए, कुछ मिनट के लिए, और दोबारा करो 2 times and 3 times. After 3 times that jerk never come, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं आएगी, पेन नहीं आएगा, निकाल दो, वो क्लियर हो गया, राइट। तो दिस इज द सेकेंड थिंग यू कीप इन माइंड, राइट। ये सारा हो गया सर। हाँ जी सर कई बार डिप्रेशन नहीं होके नॉट्स होते हैं मसल में, व्हेन यू फील। ओके फाइन। अब आप मुझे बताइए, व्हेन नॉट्स इज देयर, व्हेन यू मूव, some part is up and some part is down. You Yes. find that part? Yes. Down part, this is the weak point. Oh. You always put depression, down part. Always in the depression. Yes. उठाओ और मत मार देना। Okay. Never, 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 never. Okay. Okay. Excuse me, sir. हाँ, I just बोलिए। understood with this one, where the inflammation is there. Okay, that part I understood. You said from limbs, that is feet to hands, that weaker muscle, how to find out? I told you, muscle testing, all that. We will cover these things in practical. This is very comprehensive. Okay, But okay. fascia acupuncture is very simple. That I am trying to make you understand. It is simple. You need not to remember anything. मैंने क्या लिखा था? No point to be remember. तो वो आपको पता चल रहा है कि पॉइंट रिमेम्बर नहीं करें। जो मैंने आपको कहा वो मैंने आपको समझाया, इसमें कोई कंफ्यूजन है? पॉइंट रिमेम्बर नहीं करना ना, इसमें पॉइंट रिमेम्बर नहीं करना है, राइट। ये मैंने समझाया। अब कैसे फाइंड आउट करना, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल जोड़ेंगे, वो आएंगे हम लोग। अब धीरे धीरे जो क्लास आगे बढ़ेगा सारा कुछ आएगा, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है, बहुत मजा आएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को सर एक्सक्यूज मी सर। यस अच्छा, ये डांसिंग विद जो नीडल आप बता रहे हो, इज इट यूनि डायरेक्शन और इट कैन बी इन बोथ द डायरेक्शन? यूनि डायरेक्शन, बट when you put the needle insert, then you up and down, थोड़ा सा डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। Up and down. Okay. Up, yes. And the rotation of the needle is in unidirection or it can be any? No, can be clock, can be anti-clock. Okay, okay, done. Clock, anti-clock, clock. इसमें कोई confusion नहीं है. Whatever your mind say, you do that. Okay. Whatever your positive frame of mind, your confidence say, you have to be confident. You know, Yes. confidence नहीं है, confusion है, तो result नहीं आएगा, ये भी समझ लीजिए। मैंने कहा ये। Right, right. हाँ. Okay. Or one more thing, actually yes. if the muscles are weak, okay, तो उस Okay. एरिया में उसको sensation नहीं है, right? And depression भी है some point पे, and हाँ, some point पे inflammation भी है. Then what we need to do that area? No, We first have to- inflammation, and then the weak.
Okay, so आप कोई first कंडीशन inflammation. एग्जांपल देके बताओ, कोई एक कंडीशन बताओ ना, कोई तो बाकी लोगों को भी ज्यादा समझ में आएगा, कोई कंडीशन बताओ। जैसे सपोज किसी पर्सन को लेग में कहीं एक जगह पे डिप्रेशन है, वहां पे उसको वीकनेस है, और वीकनेस के साथ मतलब जब भी वो लिफ्ट करता है लेग तो वो प्रॉपरली लिफ्ट नहीं हो रही है, एंड वीकनेस के साथ ही इज हैविंग पेन आल्सो. So this is, you are saying about the foot drop condition. Not in foot drop condition, but few patients they are having the pain. Fine, fine. So first go for the inflammation and then the weak muscles. Sir, Then how many needles we need to put? One needle or two? Two, inflammation में two. Sometimes more than two, area बड़ा है तो 4. आप जब इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन देंगे 2 तो मिनिमम है, अगर थर्ड डिस्चार्ज किए तो फोर्थ भी करना पड़ेगा, तो 4 हो गया. बट ट्राई टू गो विद द मिनिमल नीडल, नॉट मोर देन 2. ट्राई, जितना कम नीडल लगाएंगे उतना बेस्ट एंड फास्टर रिजल्ट मिलेगा. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से यू? Yes sir. And how long? कितनी देर तक It is लगा 10 के? मिनट और 20 मिनट. जैसे ही वो आप फिर 10 मिनट बाद आप हटाकर उसको देखेंगे, उसमें पेन नहीं रहेगा. Then the communication established. You need not to do anything. टी टाइम सर. सर आज मैंने ना डायबिटीज का शुरू करा है फर्स्ट ठीक है, टाइम, आज बाय। पहली बार. तो मैंने लिवर एंड स्टमक एरिया दोनों कवर करा है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, वेरी गुड, क्या बात है. दोनों एवरी डे आई हैव टू डू इट, एवरी डे नीडिंग. एवरी डे, बट डिफरेंट प्लेस लीजिएगा. मैं प्रैक्टिकल में तो आपको बताया था, फिर बताऊंगा. वो पहले फर्स्ट एवरी डे आफ्टर ट्रीटमेंट रिकॉर्ड, पूरा रिकॉर्ड रखिए. आफ्टर ट्रीटमेंट जरूर टेस्ट कीजिए कि कितना है. चाहे तो कोई ऐसा तो नहीं है ना खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले करना है, कुछ ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना इसका? खाना खाने के तुरंत बाद तो नहीं करना है, 2 घंटे बाद ही. ठीक है ओके. ये अच्छा तो रूल है. अच्छा तो काफी देर हो गया, थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं. तो हम लोग फिर मिलेंगे 7 बजे. ओके सर. 25 मिनट का ब्रेक ले लीजिए. आप लोग को खाना खाना है या कुछ करना है या पेशेंट देखना है या कुछ भी एंगेजमेंट है या चाय पीना है, तो आप 7:15 कर दें. हाँ, तो 7:15 में फिर मिलते हैं. राइट सर शोल्डर पेन के लिए भी बता दीजिएगा बाद में. शोल्डर एवरीथिंग, डोंट वरी, जो आप बोलिए सब बता देंगे. सर एक सारे क्वेश्चन था. तब तक क्लास चलता ही रहेगा. हाँ चलता रहेगा, बंद नहीं होगा. हाँ ठीक है सर एक ओके. क्वेश्चन था. हाँ बोलिए. सर जैसा अभी हार्ट सर्जरी में जैसा कट लगा के ऑपरेशन करते, कोई भी ऑपरेशन, तो बाईपास है, उसके बाद में जो स्किन जो ये करते हैं, स्टिच करते हैं, उसके बाद में केलर्ड हो जाता है, कट हो जाता है फेशिया, तो उस कंडीशन में एक्यूपंक्चर से इलाज होगा तो होता है, उसमें करंट पास होएगा? क्लैट हो जाने के बाद तो मैंने कई कंडीशन किया. मैंने ऐसे कंडीशन को किया है कि जिनका क्लैट के साथ साथ में क्या हो गया कि पूरा पैर, चूंकि बाईपास जब करते हैं तो पैर का पूरा निकाल कर करते हैं ना, पूरा बराबर. स्वेल हो गया. अब बताऊं, एक व्यक्ति जिनका ऑपरेशन किया और यंग मैन, पूरा 46 लाख ले लिया, उतना घर बेचना पड़ा, और लास्टली फिर भी उसका पैर ठीक नहीं हो रहा, बेचारा काम पर नहीं जा रहा है. पता नहीं कैसे पता चला, मेरे पास आए, मैंने इसको 15 सीटिंग में वो फिक्स कर दिया. मतलब स्वेलिंग चला गया. अब वो डेल कंपनी में काम करते थे, काम कर रहे हैं, ठीक ठाक है. लेकिन कोलैक्ट जहां तक बात है, फेशिया कट गया तो उसको, वही तो मैं कहा, जहां वही जो लिम्फोडिमा में कंडीशन है, तो थोड़ा टाइम लगता है, आ जाएगा, हो सकता है. पर दूसरा ट्रीटमेंट हो सकता है ना उसका? हाँ जी, हो सकता ओके. तो सर इसमें हम सारे टॉपिक्स धीरे धीरे कवर करेंगे, ऑल द डिजीज आल्सो. है. और नॉट द डिजीज वाइज, ऑल द टॉपिक जो हमने अभी कहा है वो सारे कवर करेंगे. ठीक है, मसल स्ट्रेचिंग है, उसमें सारे डिजीज अपने आप आ जाएंगे. सर मेरे पास वो नहीं है, वो इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर जो आप वो करंट देते हो ना, वो नहीं है मेरे पास. वो आपको लेना पड़ेगा. हाँ जरूरी है.
तो उसको बोलते क्या है, क्या बोलते हैं उसे? AWD नीडल स्टिमुलेटर। AWD AWD अमेजन पर मिल जाएगा या बहुत सारे सब। आप कहाँ पर हैं? आप कहाँ पर हैं? कालका जी, कालका जी। कालका जी दिल्ली में ही है ना, तो आपको मिल जाएगा। आपको मैं सप्लायर का दे दूंगा नंबर, आप बात करिए। AWD इलेक्ट्रिक स्टिमुलेटर। हाँ नीडल स्टिमुलेटर। ओके वाइंड ऑफ। हाँ वाइंड ऑफ करते हैं, 7:15 बजे फिर मिलते हैं। ओके सर। ब्रेक ब्रेक इसी से फिर आप इस पर ज्वाइन कीजिएगा। सर एक बात हाँ। और, ये जो हमारी सेशन हो रहा है इसकी रिकॉर्डिंग अगर हमें देखनी होगी तो मिल जाएगी ग्रुप पे? हाँ मिल जाएगी, मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग इसके बाद मिलेगी, आप देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ओके मतलब वो आज सर- आज शाम को, रात से ही मिल पाएगी या कल से मिल पाएगी? कल से कल से रोज नेक्स्ट डे रोज मिल जाएगी। ठीक है, थैंक यू Morning. सर। Sir, can प्रभा- diabetes and BP also be cured through this? अरे हाँ। ठीक है, वही तो मैं चाहती हूँ सर, हस्बैंड के लिए करना है। अरे वेरी गुड, क्या बात है। मैं आपको बहुत शेयर सारा- करूंगा, देखो। हाँ, ठीक है, ठीक। ओके। ये हमारी कितने दिन की क्लास चलेगी सर अभी? हाँ 8 बजे तक। नहीं, कितने दिन चलेगी? 2 दिन 3 दिन? अरे नहीं, चलती रहेगी जब तक आप पूरा संतुष्ट नहीं हो थकोगे जाएगी। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बोलोगे ना बंद करो तब एलोब्रेशन का करेंगे। तरीका बहुत अच्छा है सर आपका। थैंक यू। हाँ सर, बहुत आप बहुत पेशेंस से बोल रहे हैं, तो ट्रूली इट्स नाइस। थैंक यू मिलते हैं फिर।